Good evening, students. So, welcome back to this academy, and this is chapter 7, and chapter name is the pronoun. Okay, the pronoun. So, I hope all students have taken out your book, right, class? So look at here, a pronoun is a word used for a noun. It is of the same person, gender and number as a noun for which it is used. So thus pronouns are substitutes for nouns to avoid repetition. That means pronoun क्या होता है? Pronoun वो word होता है जो noun की जगह होता है, ठीक है? Noun की जगह replace करके लिखा जाता है. Like अगर आप बोलते हैं रोहन is a good boy, तो यहाँ पे रोहन proper noun है. रोहन की जगह में आप क्या लिखेंगे? He लिखेंगे. ठीक है, वो क्या है? मैस्कुलिन है. ओके, सो रोहन इज अ गुड बॉय, so you can say he is a good boy. Okay, now what is a noun? Noun to refer is a word used for a noun. It is the same person, gender, number as the noun for which it is used. Okay, so kinds of pronouns. So there are 7 kinds of pronouns. कितने noun pronouns होते हैं? 7 kinds of pronouns. Okay, first is personal pronouns, second is demonstrative pronouns, third indefinite pronouns, fourth relative pronouns, fifth distributive pronouns, sixth reflexive and emphatic pronouns, seventh is interrogative pronouns. So let's see what is the pronoun of this one. First one, personal pronouns. So as usual, a pronoun which stands for a person or thing is called a personal pronouns, right class? So first person, first speaker, like I, we. Okay, so this is the singular, I, we, first speaker. Second speaker, singular, plural. Okay, and you. Third, he, she, it, they. So first speaker, I, we. Second, you. Okay, third, he, she, it, they. Got it? So what is the subject case? So I का क्या बन जाएगा? वी, मी. ओके, एम ई, मी. पॉजिटिव केस में माई, माइन. जेंडर मैस्कुलिन फेमिन में दोनों यूज होता है. वी में अस, आर, आर्स. मैस्कुलिन फेमिन बोथ. ओके, बोथ में यूज होता है. सेकंड में देखिए सिंगुलर प्लस यू, योर, योर्स, मैस्कुलिन फेमिन. एंड थर्ड पर्सन ही का क्या बनता है? हिम और हिज पॉजिटिव नाउन में. एंड मैस्कुलिन शी, हर, हर्स फेमिन, इट, इट्स, नेटवर्क, दे, दैम, देयर, देयर्स फॉर ऑल जेंडर्स के. ओके, आपको केवल इतना समझना है बेटा. Your students only understand this thing. I का me, my, mine, we, us, our, ours, you, your, yours, you, your, yours. Okay, he, him, his, she, her, hers, it, its, they, them, their, theirs. जो आपके मैस्कुलिन होता है उसमें आपका ही लगेगा. ओके, he, him, his. him कब लगता है? केस जब आपका ऑब्जेक्टिव होगा. पॉजिटिव केस कब होगा? जब आपका his होगा. ओके, so these are table class. So look at this table carefully. And first is nominative case. What is the short form? Is nominative, NS. Okay. So pronoun which is used as a subject. Nominative किससे कहते हैं? जो कि subject की जगह में use होता है. Objective case subject किसे बोलते हैं? जैसे I, we, you, see. Okay. So objective case, a pronoun which is used an object. जो object होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Objective case. Possessive case क्या होता है? A pronoun which shows position. जो किसको show करता है? Position को show. So you have to repetition this table many times. Okay, second thing is use of nominative and objective case. So nominative is I, we, he. Objective case helped her, helped them, helped you. Okay, so like अगर वो गर्ल है तो उसके लिए क्या आएगा? हर आएगा. ओके, एंड अगर वो क्या है? बॉय है तो उसके लिए हिम आएगा. एंड वी के साथ दैम, ही के साथ हिज, हर. ओके, सो हियर एक सब्जेक्ट बनता है. यहाँ पे एक क्या बन रहा है? सेंटेंस बना. आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की. किसकी मदद की? लड़की की. तो वो लड़की है. ओके, आई मैंने. अब आई तो मुझे नहीं पता कि कौन होगा, लड़का है या लड़की है. ओके, आई तो आप भी बोल सकते हो. आप बोलोगे आई हेल्प्ड हर. अगर आप लड़की हो आप बोलोगे आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की है. अगर मैं बोलती हूँ यहाँ से आई हेल्प्ड हर तो मैं तो फेमिनिन नहीं है, लेकिन आई तो आई है. ओके, सो आई हेल्प्ड हर. देन सी हेल्प मी, उसने मेरी मदद की. शी हेल्प मी, उसने मेरी मदद की है. तो जब हम बोलते हैं उसने मेरी मदद की है तो सी हेल्प मी. अगर मेरी जगह कोई लड़का होता है तो बोलते सी हेल्प्ड हिम. ओके, सी हेल्प हिम. दे हेल्प्ड अस. ओके, यू हेल्प हिम, उसने उसकी मदद की है. हिम मैंने उसकी, वहाँ पे क्या है? लड़का है. मतलब यू मैंने तुमने उसकी मदद की है. दे हेल्प अस, उन्होंने हमारी मदद की है. दे मैंने क्या होता है? दे किस लिए होता है? जैसे कि 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं
तो उनके लिए होता है दे यूज होता है। जब पीपल हो गए उनके लिए दे आता है, दे हेल्प अस, उन्होंने हमारी, अस मीन्स हमारी, ठीक है। सो हियर इज सेकेंड इज पॉजिटिव प्रोनाउन। सो पोजिशन, ये किसको शो कर रहा है, पोजिशन को। सो दिस पेन इज माइन, ये पेन क्या मेरा है, माई पेन, सो माइन, ओके, दिस पेन इज माइन। यू कैन से दिस पेन इज माइन, दैट स्कूल इज आर्स, वो स्कूल हमारा है। दीज बुक्स आर योर्स, ये बुक्स आपकी हैं। दोज डॉल्स आर हेयर्स, ये जो डॉल है, दोज डॉल्स आर हर्स, हर्स मीन्स उसकी है, लड़की है ना, उसकी डॉल्स हैं। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, पॉजिटिव प्रोनाउंस, पॉजिटिव डिटरमिनर्स। Okay, so positive pronoun, this pen is mine, and positive determiners, this is pen. Okay, that school is ours, that is our school. This book is yours, this is your book. That bag is his, that is his bag. This frock is hers, this is her frock. These shoes are theirs, यानी कि उनके. So these are their shoes. Okay, so this is a positive pronouns, is a positive determiners. Okay, so you are repetition many times. Okay, now A, the forms mine, ours, yours, his, her, theirs are called positive pronouns, and the forms my, are, your, his, her, their, and its are called positive determiners. Okay, so remember that determiners are always followed by nouns, but pronouns are never followed by nouns. So here is note down this word adjective, my, are, your, his, her, it, they are known as possessive. Adjectives are now considered as possessive determinants. Okay, second is demonstrative pronoun. अब demonstrative pronouns क्या होता है? What is the definition of this pronoun? So a demonstrative pronoun is used to point the object or objects to which it refers. किसको refers करता है? Like this is my purse, that is your cycle, these are her dolls, those are our friends. So this is my purse, that is your cycle. So this, that, these, those, these are demonstrative pronouns. Okay, now what is the indefinite pronouns? So first of all we will see here indefinite definition. Okay, indefinite pronoun definition. So indefinite pronoun do not refer, ये refer नहीं करता to any particular person or thing के लिए, but they refer to, किसको refer करता है, किसको दिखाता है, but they refer to nouns in a general ways as, ठीक है, general way, जैसे like us, some are born great, कुछ लोग क्या है, महान है जो यहाँ पैदा हुए हैं. many of these eggs are rotten, बहुत सारे eggs जो यहाँ पे सड़ गए हैं. few escaped unhurt, कुछ यहाँ से क्या है, बच गए हैं, जिनको चोट नहीं लगी है, ठीक है. escape मैंने क्या होता है, बचना. one should keep one's promise. Okay, do good to others. None of these apples are ripe. All are quite up to mark. Somebody has stolen my book. So these are indefinite pronouns like many, one, none, somebody, some, few. Okay, do, all. So these all are indefinite pronouns. Let's see next. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़ा, ठीक है. फर्स्ट में क्या पढ़ा था हमने, व्हाट इज द फर्स्ट वन? First is personal pronouns, second is demonstrative pronouns, third is indefinite pronouns, okay, indefinite, okay, and fourth is interrogative. Interrogative like a questions, okay, an interrogative pronoun is used to ask a question. किसके लिए होते हैं interrogative pronouns? Question पूछने के लिए. Like who teaches you English? आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? Whose is this pen? ये पेन किसका है? Whom do you want to see? ये कौन देखना चाहता है? विच इज़ योर हाउस, आपका हाउस कौन सा है? वट आर यू डूइंग? दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस. So what is the meaning of relative pronouns? All 5 interrogative pronouns become relative pronouns when they relate a noun or pronoun in a sentence. जो relate किससे करते हैं? noun और pronoun को sentence में, ठीक है. Like I met खुशी, मैं खुशी से मिला. Met is a second form. So खुशी stood first in the class. Okay. I met खुशी stood first in the class. So यहाँ पे देखो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस से हमें रिलेट कर दिया. जैसे आई मेट खुशी, मैं खुशी से मिला, एंड खुशी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कि वो क्या आती है, फर्स्ट आती है क्लास में, ठीक है. सो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं, आई मेट खुशी हु स्टूड फर्स्ट इन द, यहाँ पे हु होता है जो, ठीक है, जो कि इसमें फर्स्ट आई, जो. यहाँ पे हु क्वेश्चन में नहीं आएगा कि कौन, यहाँ पे जो आया हो, जो स्टूड फर्स्ट, जो कि क्लास में फर्स्ट आती है, ठीक है, फर्स्ट आई. सो वी मेट अ गर्ल, मैं गर्ल से मिला, सॉरी वी मीन्स हम
एक लड़की से मिले, हर ब्रदर वॉज गिवन अ रिवॉर्ड, जिसको मिला है रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बोलते हैं वी मेट अ गर्ल, हम एक लड़की से मिले, हुज ब्रदर, जिसका भाई, हुज ब्रदर वॉज गिवन अ रिवॉर्ड, जिसको रिवॉर्ड मिला था। ओके, नाउ थर्ड वन, दिस इज अ गर्ल, दिस इज द गर्ल, ये गर्ल है। ऑल प्रेज हर, और ये सब उसकी क्या क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सो यहीं पे आप क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर दिस द गर्ल होम ऑल प्रेज, जिसको जो है औरों की तरफ से प्रशंसा मिली है। शगुन हैज़ फाउंड द पर्स, शगुन को क्या फाउंड मिला, पर्स मिला है। सी हैड लॉस्ट द पर्स, लेकिन वो अपना पर्स, सी हैज़ फाउंड द पर्स, उसको पर्स मिल चुका है, बट सी हैड लॉस्ट द पर्स, उसने अपना पर्स खो दिया है। शगुन हैज़ फाउंड द पर्स विच सी हैड लॉस्ट, उसने, यहाँ पे देखो कितना सिंपल हो गया है कि शगुन हैज़ फाउंड द पर्स, उसने जो है पर्स पा लिया है, ढूंढ लिया है, विच सी हैड लॉस्ट, जो उसने खो दिया था। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल वे, राइट। अगर हम ऐसा बोले शगुन हैज़ फाउंड द पर्स, सी हैड लॉस्ट द पर्स, यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं आ रहा है, तो इस वे में हम क्या बोलेंगे, शगुन हैज़ फाउंड द पर्स विच सी हैड लॉस्ट। क्लियर। नाउ विच मीन्स जो, यहाँ पे कौन सा नहीं होएगा, जब इस टाइप से सेंटेंस में आएगा बीच में, तो ये क्या बन जाता है, जो, विच सी हैड लॉस्ट, जो उसने खो दिया था। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो आप यहाँ क्या बोल सकते हैं, वी कैन से हियर आई डू नॉट नो व्हाट हैड हैपेंड, कि जो वहाँ पे क्या, मतलब आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। ओके, तो यहाँ पे वर्ड की का साउंड निकाल सकता है कि वहाँ पे क्या हुआ था, लाइक दिस। नाउ 6-1, लुक एट हियर, आई नो द हॉस्टल, मुझे हॉस्टल पता है, ही लिव्स इन द हॉस्टल, वो हॉस्टल में रहता है। सो दिस इज अ सिंपल मैटर, आई नो द हॉस्टल दैट ही लिव्स इन, जहाँ वो रहता है। ओके, so here note down this word, the noun or pronoun to which a relative noun pronouns refer is called its antecedent. Okay, who, whose and whom are used for persons, which is used for animals and things without life, which इसके लिए यूज होता है जहाँ पे animals और things होते हैं। Okay, तो वहाँ पे आप which यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज फॉर पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स, लाइक पर्सन, एनिमल, थिंग के लिए, लाइक एंड माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, नोन एज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, आर नॉट कंसिडर एज पॉजिटिव डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। 6-1 इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम सब उसी से पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर दोज विच शो दैट पर्सन और थिंग्स आर टेकन वन एट अ टाइम और इन अ सेपरेट ग्रुप as well, like each of them got a prize. Okay, neither of them came to see me, either of the two roads leads to Delhi. That means each refers to two or more personal taken one by one, and either means one or the other. Neither is of course and the negative of either. इसको आप either भी बोलते हैं, either भी बोलते हैं, both correct. Okay, सो ईच क्या करता है, रेफर करता है टू को, और मोर पर्सन जो टेकन वन बाय वन होते हैं हम ले सकते हैं। ओके, एंड आइदर मीन्स क्या होता है, वन और अदर, वन होता है एक था और अदर होते हैं। अब नाइदर इज ऑफ कोर्स नेगेटिव के लिए आएगा। ओके, गॉट इट। नाउ लास्ट वन इज रिफ्लेक्टिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्टिव क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्टिव अच्छे से दिखाना। सो रिफ्लेक्टिव एम्फेटिक प्रोनाउंस भी प्रोनाउंस इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स और टर्न बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो एक्शन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट्स कर रहा है और टर्न्स कर रहा है सब्जेक्ट को, एंड इट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लाइक आई इंजर्ड माई सेल्फ, मैं अपने द्वारा इंजर्ड हुआ हूँ, घायल हुआ हूँ। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को अपने उससे चोट पहुँचाई। सी किल्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को मारा। दे विल एंजॉय देम से, वो अपना आप इंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो अ प्रोनाउन यूज टू कन्वे एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेटिक प्रोनाउन। सो इसी को क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। एज माई सेल्फ, आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मैंने अपने आप को डोर में लॉक कर दिया, ठीक है, डोर मैंने लॉक कर दिया अपना आप। यू योर सेल्फ आस्क फॉर मनी, he himself insulted her, the wall itself fell. So the various form of reflexive emphatic pronouns are myself, ourselves, yourself, himself, herself, itself, themselves. Got it? So these are 7 kinds of pronouns. Okay, and you have to repetition many times. Okay, and this table also is a very important table. Okay, this is very necessary for all of us, right class? So I hope you understood this chapter, today's session. Okay class, so repeat this video, watch this video many times. Okay, thank you everyone. We will meet tomorrow.